Now the students, today in this topic, in this lecture, we will start the new topic of the conic, that is called as ellipse. What is ellipse? The ellipse is the locus of the points moves in a plane such that its distance from the fixed point is in a constant ratio to its distance from the fixed straight line. This fixed point is called as the focus of ellipse or foci, and the fixed line is called as the directrix, and this ratio is eccentricity, and this eccentricity is less than 1 in case of ellipse. So this is the standard ellipse along x-axis, and the standard form of the ellipse along x-axis will be x square upon a square. Okay, that is y square upon a square into 1 minus of e square, because eccentricity is less than 1 in case of ellipse. So therefore this becomes a square times of 1 minus e square. So therefore to remember this result, we use the नंबर दिस एज बी स्क्वायर, तो हम इसको बी स्क्वायर यूज करेंगे ताकि हमें याद हो जाए. तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. मैं इसका टेबल आपको बताऊंगा, इसकी फॉर्म्स का, डिफरेंट फॉर्म्स का. दिस इज द एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड द कंडीशन इज दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी. जो एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर होगा, इसका जो डिनोमिनेटर दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी. तो दिस इज द एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस. So therefore, by solving this, as we applied in the case of parabola, that is this becomes x square upon a square plus y square upon a square into 1 minus e square, because eccentricity is less than 1, and this you have to remember this as b square. So therefore, what is b square? That is equal to, आपको ये रिजल्ट याद रखना है, what is b square? That is equal to a square into 1 minus of e square. तो ये ellipse along x axis ऐसा होता है. This is the directrix. This is the another directrix, and these are the foci of the ellipse S and S dash. So therefore, on the same way, foci, you know that is a and 0 in case of parabola. इसमें क्या होगा? a e and 0, और इसके साइड में क्या हो जाएगा? माइनस a e and 0. तो these are the foci. अब ये वर्टेक्स होगा, एक वर्टेक्स इधर है along x axis, दूसरा इधर है. तो वर्टेक्स में क्या होता है? along x axis y is equal to 0. जब y 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 है. therefore what is x? x is equal to plus minus a. तो यहाँ वाला जो वर्टेक्स है that is minus of a and 0. this is minus a and 0, and this will be plus a and 0. तो these are the vertices of ellipse. अब बात आती है what are the equations of the directrixes of the ellipse. तो equation of directrix, इधर वाला जो है that is x एक्सिस का है, तो x प्लस अपॉन a इज इक्वल टू 0, और इस साइड में x माइनस ऑफ a अपॉन e इज इक्वल टू 0. तो ये प्लस बन जाएगा x प्लस a e, और एक साइड में प्लस वाला और एक साइड में माइनस वाला, मींस x इज इक्वल टू माइनस. तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a अपॉन e, तो दैट इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन e. तो दीज आर द डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द ellipse. So therefore, students, in the ellipse we having two type of the axis. One is along x axis, another is along y axis. इस x axis का जो नाम है that is major axis, इसको बोलेंगे major axis, और this is called as the minor axis of ellipse, minor axis. Okay, और इसका जो point है that will be equal to 0 and b, और इधर वाला क्या आ जाएगा? 0 and minus b. Okay, so this is the ellipse along x axis. And similarly for y axis we have to draw the ellipse along y axis. तो ellipse इस तरह से होगा, ठीक है, y axis वाली फॉर्म में. ये y axis के अलॉन्ग होगा, इसका जो डायरेक्ट्रिक्स इसी तरह चलेगा, लेकिन इसकी जो फॉर्म है वो बन जाएगी x अपॉन a स्क्वायर प्लस, अब इसको चेंज कर दूंगा, a x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसका जो डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा उसी के अलॉन्ग एलिप्स होगा. तो x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड द कंडीशन इज a इज ग्रेटर देन b. तो दिस इज द एलिप्स अलॉन्ग y एक्सिस. तो जिस तरह का एलिप्स आपसे पूछा गया उसी तरह का आपने बनाना है. तो मैं इसके डिफरेंट फॉर्म्स और फॉर्मूले आपको बताता हूँ, हाउ टू रिमेंबर दिस. तो राइट डाउन अ टेबल. दैट इज फर्स्ट I will talk about the form.
what is the form of ellipse? तो ellipse is of two form, that is along x axis and y axis. जब x axis के ellipse की बात करूंगा तो x square upon a square, y square upon b square is equal to 1, और दूसरा जो ellipse है that is along y axis, that is x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1. तो स्टूडेंट्स इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज a मस्ट बी ग्रेटर देन b, और हियर a इज आल्सो ग्रेटर देन b. जिसका भी डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा उसी के अलोंग आपने एलिप्स बनाना है. तो दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ एलिप्स. नंबर 1 इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर plus y square upon b square is equal to 1 and a is greater than b, and another is x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1 where a is greater than b. तो अब बात करूंगा मैं इसके सेंटर की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द सेंटर. सेंटर दोनों फॉर्म में क्या है, ओरिजिन पे. तो सेंटर ऑफ द एलिप्स दैट इज यू हैव टू रिमेंबर दैट इज ओरिजिन. अब वर्टिसेस की बात करेंगे तो व्हाट इज द वर्टेक्स. वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स दैट इज प्लस माइनस AE, A0 and 0 and plus minus of A. अब अगर x एक्सिस का एलिप्स है तो वर्टेक्स प्लस माइनस A0 होगा, और अगर y एक्सिस का तो 0 और A होगा. तो यहीं से आपकी पहचान होगी कौन सा एलिप्स आपने बनाना है अलॉन्ग x एक्सिस और अलॉन्ग y एक्सिस. इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज फोकाई. तो फोकाई प्लस माइनस AE एंड 0, और इसका जो फोकाई होगा 0 एंड प्लस माइनस ऑफ AE. So this is again you see for x axis and y axis. Now equation of major axis. Major axis क्या होगा, equation of major axis. Major and minor दो axis होंगे. तो major axis में क्या है, major axis along x axis. अगर x axis का एलिप्स है तो इसमें y0 होता है, और y axis का अगर एलिप्स है तो इसमें x0 होगा. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस. सिमिलरली यू कैन राइट द मेजर ऑफ इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस. माइनर एक्सिस अगर एलिप्स x एक्सिस का है तो माइनर एक्सिस कौन होगा, y एक्सिस वाला होगा. तो y एक्सिस में x0 होता है, और सिमिलरली x में y0 होता है. उसके बाद आती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस का कौन है, x एक्सिस. इसकी लेंथ लानी है तो लेंथ कौन होगी, ये वाली. ये वाला पॉइंट माइनस A0 है, ये वाला ये माइनस AM0 है, दूसरे वाला A एंड 0 है. तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूंगा तो बनेगा 2a. तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का 2 हो जाएगा, और इस वाले में भी 2a होगा, और माइनर एक्सिस क्या बन जाना, दैट इज 2b एंड 2b. तो माइनर एक्सिस की बात करूंगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस. माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस y एक्सिस वाला, ये y एक्सिस है, ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा 2b. तो दिस इज फॉर एलिप्स along x and y axis. और लास्ट वाला जो पॉइंट आता है दैट इज लेंथ ऑफ लेटस लेक्टर. लेटस लेक्टर दैट इज इक्वल टू 2b square upon a. लेटस लेक्टर इज द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द फोकस. तो दिस लेंथ इज इक्वल टू 2b square upon a. और ये जो लेंथ आपके क्वेश्चन में किसमें, इन केस ऑफ पैराबोला इलिप्स की इसकी लेंथ आपने लिखी थी 4a. ओके, तो दीज आर द टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इलिप्स. Number 1 is along y axis, this is along y axis, and another is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. This is, and the condition is same as a is greater than b. This is along x axis. Okay, ये दो तरह के एलिप्स आपको बताए गए, along y axis and along x axis. अब आपने डिसाइड कहाँ से करना है, you have to see द नेचर ऑफ डिनोमिनेटर. जिसका भी डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा उसी के अलोंग आपने इलिप्स बना देना है, और जैसी कंडीशन गिवन होगी अकॉर्डिंगली यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द इलिप्स. नंबर 1 इज अलोंग x axis, another along y axis. Now the another property is called as the focal property. You have to remember that is the focal property. So what is the focal property? The focal property of the ellipse, the sum of the focal distances of a point on the ellipse is constant. The sum of the focal distances of a point on the ellipse, ये s and s are distances हैं, और उसका sum of focal distances of the point will be equal to constant, and this constant is equal to the length of the major axis. So you have to remember this. This is the focal property of ellipse.
P is the movable point and S and S are the foci. So therefore the sum of the distance is equal to 2a. Now after that I will start with the exercise of this ellipse topic. Now students see this is exercise 11.3 of your NCERT book. I will start with the first question. What is given in the first question? You have to find the different things. The ellipse is given as x square upon 36 plus y square upon 60. And the question is, you have to find so many things. That is coordinate of foci, what is length of major axis, minor axis, eccentricity, length of latus rectum of the ellipse. Okay, so in order to find these things, first of all students have to compare this with the standard form. This is the ellipse along x-axis, so therefore we have to write all the results along x-axis. Why this is axis? Because the denominator of x is greater. अगर x का डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो एलिप्स अलोंग x एक्सिस है, तो मैं इसको कंपेयर करूंगा तो व्हाट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड व्हाट इज b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 60. आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर एंड b स्क्वायर यू हैव टू फाइंड द फोकाई ऑफ द एलिप्स. तो आपको पहले फोकाई लाना है. तो फोकाई ऑफ एलिप्स होता है प्लस माइनस a e एंड 0 बिकॉज एलिप्स अलोंग x एक्सिस है. फोकाई अलोंग एक्सिस a e एंड 0 का. और वर्टेक्स की बात करनी है तो वर्टेक्स हो जाएगा प्लस माइनस a एंड 0. आपको टेबल देखना है. तो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में b स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ऑफ e स्क्वायर बिकॉज इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1. नाउ यूजिंग दिस रिजल्ट आप इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं. तो कैसे मैं इसको यहाँ कैसे यूज करूंगा? ए स्क्वायर मुझे गिवन है, बी स्क्वायर मुझे गिवन है, इसेंट्रिसिटी मिल जाएगा. तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 बी स्क्वायर इज 16 एंड ए स्क्वायर इज 36 एंड 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर. तो इसको आपने जितना जल्दी हो जाए सॉल्व कर देना. इसको यहाँ लाके 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर कर दिया और मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा. दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 16 बाय 36. ओके, इसे सॉल्व करके मुझे मिलेगा 36 माइनस 16 अपॉन 36. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव टू राइट द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस बिकम्स 20 और e is equal to 36. what is e? therefore e is equal to under root of 20, or you may solve it as 5/9. this can as root 5 by 3 is the eccentricity of ellipse. तो दिस इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स. अब इसेंट्रिसिटी आने के बाद मैं डिफरेंट रिजल्ट्स लिख दूंगा. तो कैसे देखें? फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट द इसेंट्रिसिटी इज रूट 5 by 3. अब चेक कर ले इज इट लेस देन 1. ओके, इज इट लेस देन 1 तो इसेंट्रिसिटी ठीक है. अब मैं इसेंट्रिसिटी लाने के बाद इसकी वैल्यूज पुट करूंगा. द फर्स्ट केस इज यू हैव टू फाइंड द फोकाई. So what is foci? That is the coordinate of foci. Foci is plus minus AE. So foci will be plus minus A. What is A? That is 6 and E root 5 by 3. Root 5 by 3 and 0, or you may write it as 2 root this. Okay. Now after this you have to write the vertex. Vertex is plus minus A. So plus minus 6 and 0 is the vertex of the ellipse. After that you have to find the length of the major axis. Length of major axis. Length of major axis that is 2a. तो 2 into a that is equal to plus minus 6. लेंथ जो हमेशा पॉजिटिव होगी तो दिस इज 12. सिमिलरली फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस. अगर माइनर एक्सिस की बात करता हूँ तो माइनर एक्सिस होता है 2b. तो दैट इज इक्वल टू b प्लस माइनस 4. तो माइनर एक्सिस हो जाएगा 8. तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 12, माइनर एक्सिस दिस. इसेंट्रिसिटी आपको मिल गई है. उसके बाद बोलता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम that is 2b square upon a. So what is 2 as it is? b square is 16 upon a is 6. You have to write it 32 by 6 or solve करके जो भी लिखना लिखो. That is
16 by 3. तो दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. अगर आपको सॉल्व करना है तो लिख सकते हैं. ओके, तो दीज आर द ऑल results of this first ellipse. Now after this first question, I will start with another, that is second, the same type of question, that is x square upon 4 plus y square upon 25 is equal to 1. Now see, this is the ellipse along y axis because the denominator of y is greater. y का डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो आपको ellipse along y axis लिखना है. ठीक है, y का डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो मैं यहाँ कंपेयर करूंगा व्हाट इज a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 एंड व्हाट इज b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4. कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से. a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू आने के बाद अब मुझे इसेंट्रिसिटी लेनी है. तो इसेंट्रिसिटी के लिए फिर वही फॉर्मूला, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, दैट इज 4 बाय 25 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर. दैट इम्प्लाइज e square is equal to 1 minus of 4 by 25 can be written as 21 by 25. and what is e? तो इसेंट्रिसिटी जो आपको मिल गई दैट इज रूट 21 अपॉन 5. और यहाँ नजर रखनी है दिस मस्ट बी लेस देन 1. ओके, तो दिस इज द इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिसिटी के बाद आपको लिखना है इसका फोकाई. तो व्हाट इज फोकाई? दैट इज प्लस माइनस. लेकिन यहाँ पर एलिप्स अलोंग वाई एक्सिस है तो 0 एंड प्लस माइनस ऑफ ए इज 5 and e is root 21 by 5. आपको सॉल्व करके लिखना है तो दिस कैन बी written as 0 and plus minus of root 21 is the foci of this ellipse. Then after that you have to write the vertices. What is the vertices? Vertices is 0 and plus minus a, so that is equal to plus minus of 5. After the vertices you have to write the length of major axis, that is length of major axis. The length of major axis is length, that is 2a. अब आपको 2 पुट अप करना है तो 2 जो है a पुट करना है. a is this is a 5, so that is 2 into 5 that is equal to 10. and similarly you have to write the length of the minor axis. अब minor axis लिखना है तो length of minor axis, students see the length of minor axis, that is 2b. and 2, what is b? That is equal to again 2, so this is equal to 4, so this is the length of the minor axis of the ellipse. Then after that, length of latus rectum, that is equal to 2b square by a, so that is equal to 2. and what is b square? b square is 4 by a is 5, so this is equal to 8 by 5 is the length of latus rectum of this question. Okay, so this is the way you can find the different values of the ellipse. Now after this I will start with one more, that is the question number 5. You have to solve these all like the same way. That is ellipse is x square upon 49. ये मैं दूसरा ellipse ले रहा हूँ. x square upon 49 plus y square upon 36. y square upon 36 is equal to 1. Again see the standard form is this is ellipse along x axis. तो x axis का standard form क्या है? ये वाला है x square upon a square plus y square upon b square. तो आपको a square मिल गया 49 and what is b square? That is equal to 36. Therefore a is equal to plus minus of 7 and b is equal to plus minus of 6. After that you have to find eccentricity. The formula of eccentricity is b square is equal to a square. तो मैं b square की वैल्यू पुट करूंगा, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा. ये फॉर्मूला है b square is equal to a square into 1 minus of e square. तो what is b square? That is equal to 36 upon a square 49 is equal to 1 minus e square. So therefore this e square can be written as 1 minus of 36 by 49. So students this will gives you 13 root by 7 जो है इसेंट्रिसिटी आ जाएगी. तो दिस इज e square by this.
आपको क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। 37 बाय दिस इसेंट्रिसिटी आ गई है। फिर आपको लिखना व्हाट इज, तो व्हाट इज होता है सॉरी फोकाई लिखने पहले, व्हाट इज फोकाई, तो फोकाई ऑफ लिप्स इज इक्वल टू कौन सा लिप्स है, एक्स एक्सिस वाला है तो ए ई प्लस माइनस ए, व्हाट इज ए, दैट इज 7 एंड ई, तो ये इसकी फोकाई आ रही प्लस माइनस ए ई एंड 0 प्लस माइनस ऑफ 13 एंड 0। ओके बेटा, अब उसके बाद व्हाट सी लिखना है, तो दिस इज द एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस, व्हाट एक्स क्या होगा प्लस माइनस 7 एंड 0। अब बात आती है मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस कौन होता है 2a, a इज दिस, तो मेजर एक्सिस हो जाएगा 14 2 into this, एंड माइनर एक्सिस that is 2 into 6 that is equal to 12, and length of lattice rectum I am writing here the length of lattice rectum that is 2b square, 2, what is b square, that is 36 upon a, that is 7, so this will gives you 72 by 7, so this is the length of lattice rectum of the ellipse. So in this way you can find the values. Okay, now the splits. After this question I will start with another one, that is question number 7. This is 36 x square, 36 x square plus 4y square plus 4y square is equal to 144. Now to write in the standard form, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, इसको 144 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि वहां पर 1 लाना है, 144 से मैंने डिवाइड कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म पे वहां 1 होता है। अब इसे डिवाइड करने के बाद आगे वाले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करें। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 अपॉन दिस मींस ये 4 आ जाएगा, और y अपॉन y स्क्वायर वाले में 4, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिप्स। नाउ कंपेयर दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें y का डिनोमिनेटर ग्रेटर, तो देयरफॉर दिस इज द एलिप्स अलोंग y एक्सिस। अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा, तो y एक्सिस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो दिस इज b स्क्वायर एंड दिस इज a स्क्वायर। ओके, after getting b square and a square we have to find its eccentricity. Eccentricity is equal to b square is equal to a square into 1 minus of e square, that implies b square means 4, a square is 36 is equal to 1 minus of e square। अब यहाँ से ये बनेगा 1/9, तो मैं e square लिखूंगा 1 minus 1 by 9 that is equal to 8 by 9, or can be written as 2 root 2 और root 8, जो भी आपको लिखना है। Okay, so this is the eccentricity. Okay, after finding the value of this eccentricity you have to find its different values। eccentricity आपको मिल गया, see once again x square upon 4 plus y square upon this, a और b की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, b स्क्वायर मेरे पास 4 है, a स्क्वायर 36 है, तो मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू मिल जाती है कितनी, 4 by 36, दैट इज इक्वल टू 8 by 9। ओके, अब इसेंट्रिसिटी आने के बाद मैं इसके डिफरेंट रिजल्ट लिखूंगा। व्हाट से लिखना है, व्हाट इज द वर्टेक्स, द वर्टेक्स चेक करें, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट्स फोकाई, फोकाई दिस इज द एलिप्स अलोंग y एक्सिस, तो फोकाई हो जाए 0 एंड प्लस माइनस a, व्हाट इज a, दैट इज इक्वल टू 6 into √8 by 3, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो फोकाई कैन बी रिटन एज प्लस माइनस ऑफ 2√8, और यू मे राइट इट एज 4√2 एंड 0 एंड दिस। ओके, 4√2 एंड 2 जो भी आपको लिखना ठीक है। ओके, समझ गए। नाउ आफ्टर दिस फोकाई you have to find the vertex, the vertex of this is 0 and plus minus of a, तो what is a, that is equal to 6, तो मैं लिखूंगा इसको प्लस माइनस ऑफ 6। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस होता है 2a, a 6 तो बन जाएगा 12, एंड माइनर एक्सिस 2b that is equal to 4, and what is the length of latest rectum, length of latest rectum that is equal to 2 into b square is 4 upon a that is equal to 6, so this will becomes 4 by 3, so this is the length of latest rectum of ellipse। This all about
this lecture.